Here let's come to our second passage, that is about robots. So firstly we will see what kind of questions are there and how many type of questions are there, and based on that we will decide our strategies what to do first. As you can see that these are the list of headings. So we need to give headings for the sixth paragraph. For one it is given, means for paragraph G it is given that the heading is 2, that is, are we expecting too much from one robot, that is given for G. From others we need to mention from 14 to 19. A to paragraph F we have to give headings for that. And after that, after 14 to 19, after these 6 questions, you can see here are from question number 20 to 24 we need to mention yes, no, not given. As you can see 5 questions are there, these are yes, no, not given. If statement agrees with the views of the writer, that is yes. If contradicts with the views of the writer, no. And if it is impossible to say what the writer thinks about this, we need to mention not given. So after these 5 questions there are again 3 more questions. So these are basically summary type. There are fill in the blanks, we need to find answers from this paragraph. So we have analyzed all the questions, so now we can plan. So these yes or not given questions we are going to read before reading the text, and for summary we can see that complete summary below with words taken from the paragraph F. So we need to answer these questions from paragraph F. So when we are reading paragraph A to E, we need not to focus or concentrate on that. We need to answer these questions just from paragraph F. So we will be reading these questions, yes, not given, and then we will start reading the passage straightly after that. And as we will go on with paragraph A to F, firstly with A we will find heading also, and then B heading, and yes, no, we will go by that. When we will reach paragraph F, then we will find the fill in the blanks as well as heading, and if there would be any yes or not given question. So earlier we were talking about some true false, so there is a slight difference between yes and not given questions. Don't worry, as I'll be making further videos I will let you know about the difference between the yes, no, not given and true false. In general saying, the yes, no, not given are writer's views and true false are fact based. So we will discuss detail in further videos about their differences. It's not a big difference, just slight differences are there. So now let's read the questions first. So what is first question? Karl Capek successfully predicted current uses for robots. So we are going to find firstly Karl Capek. So Karl Capek is a keyword because it is the name of something, so there would be nothing synonym about that. So Karl Capek. Next is lies were saved by NASA robot Dante. So here NASA and Dante, these are the keywords. And NASA is in capital letters, and usually whenever you read questions, those words which are written in capital letters, try to find those first because you can very quickly grab that. Next, robots are able to make fine visual judgments. Or robots fine visual judgments, can they made or not? We need to find that. Next, the internal workings of the brain can be replicated by the robots. So internal working of brain replicated by robots. Next is the Japanese have the most advanced robot system. So Japan most advanced robot system. Firstly we will find about Japan, if there are robots and whether they are most advanced or not, we will find about that. So now we have read the questions. Now let's go to the paragraph. So here you can see that firstly there is something written that since the dawn of the homogeneity, here something is written before starting the paragraph A to F. So we can read that also because sometimes there can be questions from this, especially about yes not given, because headings will start from A to F. We need to mention about that. So here is some text, we can read that. So what is written over here? Since the dawn of the homogeneity, dawn matlab something beginning, like beginning of the day, that is known as dawn. So शुरुआत किसी चीज़ का होना. So जब से शुरुआत हुई किसकी, होमोजेनिटी. जेनिटी मीन्स समथिंग न्यू, समथिंग इनोवेटिव, वेरी डिफरेंट. So कुछ नया
करने की जो शुरुआत हुई है, पीपल हैव डिवाइस्ड एवर मोर कनिंग टूल्स, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कुछ कनिंग, कनिंग मीन्स समथिंग अट्रैक्टिव और समथिंग कुछ न्यू, समथिंग कुछ अट्रैक्टिव जो डिवाइस करना स्टार्ट किया है। जब से हमारी इंजीनियरिंग की शुरुआत हुई है तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कनिंग टूल्स डिवाइस किए हैं टू कोप अप विद वर्क दैट इज़ डेंजरस। जो डेंजरस वर्क है उसको करने के लिए, बोरिंग और जो हमारा बर्डनसम वर्क है उसको करने के लिए कुछ कनिंग टूल डिवाइस किए हैं, और जस्ट प्लेन नास्टी। दैट कंपल्शन हैज़ कल्मिनेटेड इन रोबोटिक्स। सो इसकी वजह से किस चीज़ का राइज हुआ है, रोबोटिक्स का हुआ है, जो एक साइंस है जिसमें कन्फरिंग वेरियस ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑन मशीन्स। सो जिसमें हम वेरियस ह्यूमन जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं, वो किसको दे देते हैं हम, मशीन्स को। सो दैट इज़ रोबोटिक्स। सो दिस वाज समथिंग मेंशन्ड अबाउट the robots. So here I don't think so there is any answer because true false, there is Carol Capik NASA, there is nothing mentioned about that, and adding we need note to give from that and summaries in a paragraph. So now we will start reading paragraph A. Now after reading our questions we can start reading the text. So here from paragraph A we will be reading the text and trying to find heading as well as yes no not given questions. So firstly what they say, the modern world, जो हमारा modern world है is increasingly populated, when increasingly populated है भरा पड़ा है किससे, quasi intelligent gizmos. So quasi means similar, so similar से intelligence वाले gizmos. Gizmos क्या था, हमारे gadgets, cell phone, tabs, laptop, these are gizmos. So quasi intelligent gizmos से हमारा modern world भरा पड़ा है, whose presence we barely notice, जिनकी presence हमने कभी notice भी नहीं की, notice भी नहीं करते, but whose creeping ubiquity has removed much human drudgery. सो क्रीपिंग मतलब अनप्लेजेंट, जो हमें अच्छी ना लगने वाली उसकी यूबिक्विटी, यूबिक्विटी मतलब प्रेजेंस एवरीवेयर, बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाना। सो हमें नापसंद होने वाली जो उनकी एवरीवेयर जो प्रेजेंस है उसने क्या रिमूव कर दिया है, मच ह्यूमन एनर्जी, हमारे जो मोनोटोनस या रेपिटेटिव टास्क हैं वो रिमूव कर दिए, मतलब वो करने लगे हैं। सो ओवरऑल पहले 3-4 लाइन्स में उन्होंने क्या बताया हुआ है कि हमारी लाइफ में बहुत सारे जो गिज़मोस हैं, ये रोबोट्स वगैरह हैं, वो आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं चला, हमने कभी नोटिस नहीं किया। सो आवर फैक्ट्रीज हम टू द रिदम ऑफ रोबोट असेंबली, हम आगे क्या दे रहे हैं, एग्जांपल्स। सो कहाँ कहाँ रोबोट्स यूज़ हो रहे हैं, कहाँ कहाँ बढ़ रहे हैं। सो एक तो असेंबली आर्म्स, जो आजकल फैक्ट्रीज में असेंबलीज में जो काम हो रहा है वहाँ पे कौन काम कर रहे हैं, रोबोट्स। हमारे जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे ऑटोमेटेड टर्मिनल्स, जो हमारी ATM मशीन्स हैं या जो ऐसे टर्मिनल्स हैं वो भी क्या हैं, वो भी रोबोट्स की तरह ही ऑलमोस्ट। सो वो आराम से फ्लाइटनेस से फ्लाइटली वो ट्रांजैक्शन कर देते हैं। अब और जो हमारी सबवे ट्रेन्स हैं वो कंट्रोल्ड किसके हाथ होती हैं, टायरलेस रोबोट ड्राइवर्स। सबवे ट्रेन्स को कौन ड्राइव कर रहे हैं, टायरलेस रोबोट ड्राइवर्स। टायरलेस बिना थके हुए रोबोट्स ही काम कर रहे हैं वहाँ पे। जो माइन शाफ्ट्स हैं वहाँ पे डिगिंग का काम कौन कर रहा है, वहाँ पे भी रोबोट्स ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद मैंने एग्जाम्पल है, कोई न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स हो गया, जैसा कि सच एज एग्जाम्पल दे रहा है 3 माइल आइलैंड्स, ये चेरनोबिल में हुआ था। तो वहाँ पे भी अगर कोई एक्सीडेंट हो गया, काम वहाँ पे कोई टॉक्सिक या पॉइजनस कोई गैस वगैरह लीक हो गई, तो वहाँ पे भी क्लीनिंग वगैरह का काम कौन करते हैं, वहाँ पे भी रोबोटिक्स, जो रोबोटिक्स वर्कर्स हैं टू विथस्टैंड रेडिएशंस। वर्कर्स मतलब कह सकते हैं जो हमें कोई असिस्ट कर रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो वहाँ पे भी रोबोट्स ही काम कर सकते हैं। और ये सारी हमारी एग्जाम्पल एप्लीकेशन बताई हुई हैं कहाँ का रोबोट्स काम करें। उसके बाद सच इज़ द स्कोप ऑफ यूजेस। सो ये वाली जो यूजेस हैं कौन सी वाली, जो बैंकिंग, असेंबली, माइनिंग, जहाँ जहाँ पे हम यूज़ कर रहे थे। एनविजन्ड बाय कैरल कैपिक। एनविजन्ड क्या होता है, किसी चीज़ को बड़ी प्रिडिक्ट कर लेना, फ्यूचर विजन, जैसे विजन होता है विजन फ्यूचर के बारे में, उससे वर्ड बना हुआ है एनविजन्ड। सो सच इज द स्कोप ऑफ यूजेस, ये एनविजन्ड कर ली थी, किसने कर ली थी, कैरल कैपिक। कौन है वो, चेक कंट्री का प्ले राइट है, चेक रिपब्लिक कंट्री का नाम है, आपने शायद सुना होगा। सो चेक प्ले राइट है हु कॉइन्ड द टर्म रोबोट इन 1920, उसने ही रोबोट टर्म कॉइन की थी 1920 में। सो द वर्ड रोबोटा मीन्स, रोबोटा वर्ड से जैसे बनी है उसका मतलब क्या है, फोर्स लेबर, जो जिससे काम करवाना। तो जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है, जो एक्सपेरिमेंट करता है उसका ही एक्सप्लॉयटेशन होती है कोड बेस पे। सो ओवरऑल ये यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि कैरल कैपिक नाम का कोई पर्सन था चेक कंट्री का, उसने 1920 में उसने ही रोबोट को नाम दिया था रोबोट, और उसने तभी एनविजन कर लिया था, तभी प्रेडिक्ट कर लिया था फ्यूचर में रोबोट कौन कौन से काम करेंगे। तो ये सच काम कौन से थे, ये वाले जो बैंकिंग, असेंबली, माइनिंग। सो नाउ वी हैव रेड द टेक्स्ट। सो जब अपना टेक्स्ट रीड कर लिया सीधे ही आप, यू आर नॉट गोइंग ऑन हेडिंग्स, दैट इज द बेसिक मिस्टेक्स
it usually students do, and due to which they make most of the answers wrong. So होता क्या है, पैराग्राफ पढ़ लिया, कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे माइंड में घूम रहे हैं, उनको सीधे लेके हेडिंग में पहुंच जाते हैं। हेडिंग में एग्जामिनर भी, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस, दे नो दैट कि ह्यूमन क्या करने वाले हैं। सो 6 पैराग्राफ के लिए 10 या 11 हेडिंग्स दी होंगी, और कुछ पैराग्राफ में स्पेसिफिकली उन्होंने डिफरेंट पैराग्राफ से वर्ड्स निकाल के कुछ हेडिंग में उन्होंने लिखे होंगे। और हम जैसे ही हेडिंग लिस्ट में जाएंगे, तो हमने फर्स्ट सेकंड पढ़ी, वहाँ पे कोई वर्ड मिला जो पैराग्राफ में हमने रीड किया है, तो हम सोचते हैं यार ये इसका आंसर हो सकता है, तो हमें 4 या 5th हेडिंग लगेगी। देन उसके बाद एक नेक्स्ट पढ़ी 7th, वो भी उसकी हेडिंग लगती है। 8th या 9th पढ़ी, वो भी उसकी हेडिंग लगती है। तो ऐसे लगता है जैसे सारी हेडिंग एक ही पैराग्राफ पे फिट होती है। तो ये कन्फ्यूजन क्यों है? क्योंकि वी आर जस्ट मैचिंग वर्ड्स, इट इज़ नॉट अ वर्ड मैचिंग गेम, इट इज़ हेडिंग। सो वी नीड टू मेक अ टाइटल फॉर दैट। सो अगर आप हेडिंग में एक्यूरेसी चाहते हो, तो what you can do, firstly try to summarize that, try to make a heading by yourself, if not heading at least an overall idea। तो फिर उसको मैच करने के लिए ट्राई करेंगे हम हेडिंग लिस्ट से, और जो हेडिंग लिस्ट मैच हो रही होगी उसके सारे सिनोनिम हम देखेंगे कि एवरीथिंग इज गिवन आउट देयर। सो इफ गिवन आउट देन डेफिनेटली दैट इज द आंसर। सो लेट्स ट्राई, यू विल लर्न हाउ टू डू दैट। सो फर्स्टली क्या बताया उन्होंने कि मॉडर्न वर्ल्ड है जो हमारा इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड है, जो बड़ा बड़ा है कुछ गिज़मो से। सो रोबोट्स के हमारे लाइफ में आने की बात की है। उसके बाद उन्होंने एग्जांपल दी, वो किस चीज़ की, वो भी कि रोबोट्स कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद एक पर्सन था, कौन था, कैरल कैपिक था, जिसने रोबोट के कुछ एप्लीकेशन में कुछ यूजेस के बारे में, कुछ स्कोप के बारे में रिविजन किया। तो वो भी रोबोट्स कहाँ कहाँ हमारी लाइफ में आ सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी बात हुई थी। सो ओवरऑल रोबोट्स के हमारी लाइफ में आने की बात की हुई है। सो इस चीज़ को आइडिया को लेकर नाउ लेट्स गो टू द हेडिंग। सो सम सक्सेस हैज रिजल्टेड फ्रॉम ऑब्जर्विंग हाउ द ब्रेन फंक्शन। सो कुछ सक्सेस मिली है ये ऑब्जर्व करके कि ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। ब्रेन के फंक्शन के बारे में कोई बात नहीं हुई है पैराग्राफ में। सेकंड हेडिंग ऑलरेडी गिवन है जी पैराग्राफ की, सो यू कैन सी ओवर देयर, जी की सेकंड गिवन है, तो ये इसको हम किसी के लिए भी नहीं पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट, साइंटिस्ट आर एग्जामिनिंग ह्यूमनिस्टिक पॉसिबिलिटीज। तो साइंटिस्ट ह्यूमनिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं। यहाँ पे ना तो साइंटिस्ट के बारे में कुछ मेंशन है, ना ही ह्यूमनिस्टिक पॉसिबिलिटीज़ के बारे में। देन देर आर जजमेंट्स दैट रोबोट कैन नॉट मेक। तो जजमेंट, रोबोट की जजमेंट्स के बारे में भी कुछ नहीं बात हुई। रोबोट की पावर के बारे में, रोबोट की पावर बहुत ज़्यादा ग्रेट हो गई है, टू ग्रेट, रोबोट की पावर में कोई बात नहीं हुई। ह्यूमन स्किल्स हैव बीन हाइटेंड विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स। तो ह्यूमन स्किल्स हाइटेंड, कुछ इंक्रीज एक्सटेंडेड हो गई हैं रोबोटिक की हेल्प की वजह से। तो ह्यूमन की स्किल्स एक्सटेंड हुई हैं कि नहीं हुई ये नहीं बताया हुआ। रोबोट्स हमारी लाइफ में आ गए ये बताया, बट स्किल्स हाइटेंड या इंक्रीज हुई हैं कि नहीं हुई इसके बारे में कुछ नहीं है। सो देर आर सम थिंग्स वी प्रेफर द ब्रेन टू कंट्रोल। सो कुछ चीज़ें, कुछ थिंग्स जो हम सोचते हैं वी प्रेफर के ब्रेन कंट्रोल करे, तो हमारी प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ। रोबोट्स हैव क्वाइटली इन्फिल्ट्रेटेड आवर लाइव्स। रोबोट्स की बात हुई है, यस रोबोट्स की बात हुई थी यहाँ पे। रोबोट्स के लिए क्या, कैसे इंटेलिजेंट जो गिज़मोस लिखा हुआ है, तो हैव क्वाइटली मतलब चुपचाप शांति से। सो इसके लिए क्या लिखा हुआ है, वी बेयरली नोटिस। सो यस वी कैन सी दैट वी बेयरली नोटिस मीन्स हमने कभी नोटिस नहीं की उनकी प्रेजेंस। सो मतलब चुपचाप, क्वाइटली इनफिल्ट्रेटेड मतलब किसी की लाइफ में दखल अंदाजी करना, किसकी जगह ले लेना। सो इनफिल्ट्रेटेड के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस दे हैव रिमूव मच ह्यूमन ड्रजरी। सो जो हमारे मोनोटोनस या बोरिंग टास्क थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए, तो उसकी जगह कौन करने लग गया, ये रोबोटिक आर्म्स, ये रोबोट्स करने लगे। और तो मॉडर्न वर्ल्ड इज इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड, तो मॉडर्न वर्ल्ड इंक्रीजिंगली पॉपुलेटेड भी है, सो इट इज़ ऑल्सो इनफिल्ट्रेटेड। आवर लाइव्स के लिए यहीं पे मॉडर्न वर्ल्ड बताया था, या उसके बाद में उन्होंने सारा एग्जांपल दिए हैं, बैंकिंग, असेंबली, माइनिंग, ऑल दीज आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। सो रोबोट्स हैव क्वाइटली इनफिल्ट्रेटेड आवर लाइव्स। So everything is given for robots as intelligent gizmos. Quietly we barely notice, infiltrate के लिए बताया human drudgery और increasingly populated. और our lives, modern world, our modern world, and here are given some examples. Banking, assembly, mining, all are part of our lives. So everything is given. So answer would be 8th. So for paragraph A, there is 8th. There is original prediction have been revised, but here some prediction were done by Carol Capek, but there is nothing about revisions, whether they are wrong or they are been revised or not, or extended or not. There is nothing mentioned about that. Another approach meets the same result. There is nothing any another approach that have meet the
same result that could be made earlier. So there is nothing any result or approach. So answer was 8. Let's move to yes not given, because there was something about Karl Kapik. So here you can see that 20th question. So Karl Kapik successfully predicted our current uses for robots. So Karl Kapik, yes, here mentioned it is Karl Kapik. Successfully predicted. Predicted means envisioned. Envisioned means predicted. Current uses for robots. So what they have mentioned for current uses? They mentioned such is the scope of uses. ये कौन सी uses थी? Uses थी बैंकिंग असेंबली माइनिंग. ये कौन सी थी? मॉडर्न वर्ल्ड की. सो मॉडर्न वर्ल्ड कौन क्या हो गया? करंट वर्ल्ड, करंट यूजेस. सो कैरल कैपेक के लिए क्या दिया हुआ है? कैरल कैपेक दिया हुआ है. सो कैरल कैपेक के लिए कैरल कैपेक दिया हुआ है. प्रेडिक्टेड के लिए एनविजन्ड दिया हुआ है. और करंट यूजेस फॉर रोबोट्स के लिए सच यूजेस थी. जो कौन सी थी? ये वाली सारी यूजेस बैंकिंग असेंबली माइनिंग मॉडर्न वर्ल्ड की. सो वो होगी मॉडर्न मीन्स करंट. सो करंट यूजेस. सो एवरीथिंग इज गिवन. सो कैरल कैपिंग ने प्रेडिक्ट कर ली थी यूजेस. सो यस कर ली थी. सो व्हाट शुड बी द आंसर? आंसर शुड बी यस. वाई? बिकॉज स्टेटमेंट एग्रीज विद द व्यूज ऑफ द राइटर. सो राइटर के व्यूज के साथ स्टेटमेंट एग्री करती है. यस, राइटर ने भी कहा कि उसने प्रेडिक्ट कर ली थी. सो 20th आंसर वुड बी यस. You can mark it yes. So now yes, now first 20th question हो गया. Next NASA के बारे में कुछ नहीं है. So we would have to read paragraph B. So here is the paragraph B. So paragraph B read करते हैं हम. क्या अदर इनोवेशंस, कुछ और इनोवेशंस हैं जो प्रॉमिस करते हैं टू एक्सटेंड द एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन ऑपरेटर. कुछ और इनोवेशंस जो प्रॉमिस करती हैं, जो हमारी एबिलिटीज़ बढ़ा रही हैं किसकी? ह्यूमन ऑपरेटर की. फर्स्टली सो जब भी आप हेडिंग बना रहे हो थोड़ा सा फर्स्ट 2-3 लाइन्स और लास्ट 2-3 लाइन्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि कहीं भी फर्स्ट 2-3 लाइन्स में राइटर वो किसी भी पैराग्राफ का आइडिया इंट्रोड्यूस करता है और लास्ट में उसको कंक्लूड करता है. सो ऐसा नहीं कि हेडिंग में आपने जस्ट फर्स्ट 2 लाइन्स और लास्ट 2-3 लाइन से ही आंसर ढूंढना है. ये स्ट्रेटजी ये फ्रूटफुल हो सकती है अगर आपके पास लास्ट में 5-6 मिनट बचे हुए और सारी हेडिंग बची हुई है, तो आप फर्स्ट 2 और लास्ट 2-3 लाइन्स में से हेडिंग बना सकते हो. अदरवाइज ट्राई टू रीड द होल पैराग्राफ एंड ट्राई टू समराइज इट. दैट विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स. सो बट ये है कि स्टार्टिंग 2-3 लाइन्स और लास्ट 2-3 लाइन्स थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए. सो कुछ इनोवेशन आइडिया क्या इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे कि कुछ इनोवेशन ने ह्यूमन ऑपरेटर की एबिलिटीज़ बढ़ाई है या बढ़ा रही है. थैंक्स टू द इंसेसेंट नेचराइजेशन. इंसेसेंट मतलब लगातार, नेचराइजेशन जो चीज़ों का छोटे छोटे होना. तो जो चीज़ें छोटी छोटी हो रही हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो मैकेनिक्स देर आर ऑलरेडी रोबोट सिस्टम. तो ये जो चीज़ें छोटी छोटी हो रही हैं उसका ही धन्यवाद है कि जो रोबोट सिस्टम है आजकल वो कुछ ब्रेन एंड बोन सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं. दैट टू विथ सब मिलीमीटर एक्यूरेसी. सब बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ. और इतनी एक्यूरेसी जो हाईली स्किल्ड फिजिशियन, जो हाईली स्किल्ड डॉक्टर हैं वो भी अचीव नहीं कर सकते अकेले. तो उतनी एक्यूरेसी के साथ काम कौन कर सकता है? रोबोट कर सकते हैं. एट द सेम टाइम उसी टाइम अभी एक उन्होंने बता दी हमारी कि हमारी एबिलिटीज़ कहाँ बढ़ाई हैं रोबोट्स ने. कहाँ बढ़ाई हैं? मेडिकल फील्ड में. सो मेडिकल फील्ड में जो ब्रेन और बोन सर्जरी जो हम अकेले नहीं कर सकते थे या पहले नहीं कर सकते थे, तो अभी वो हम कर सकते हैं. सो एक एग्जांपल, एक एप्लीकेशन होगी हमारी एबिलिटीज़ बढ़ाने की. एट द सेम टाइम दूसरी बता रहे हैं कि जो टेक्निक्स हैं लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल करने वाले की, जो हम आजकल रोबोट्स को हैं लॉन्ग डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी हमें हज़ार से किसी खतरे से दूर रखेगी. एग्जांपल दे रहे हैं 1994 में एक रोबोट बनाया, नासा का रोबोटिक एक्सप्लोरर बनाया उन्होंने. कौन सा बनाया? डेंटे. सो उसमें वीडियो कैमरास था, स्पाइडर लाइक लेग्स थी उसकी. उसको उन्होंने कहाँ पे भेजा? अलास्का में. अलास्का में क्या था? एक वोल्केनो. और जबकि टेक्नीशियन जो थे वो 2000 माइल दूर बैठे हुए थे. कहाँ पे? कैलिफोर्निया में. तो कैलिफोर्निया में बैठ के उन्होंने जो सीन था, जो वोल्केनो था, उसको देख लिया सैटेलाइट इमेजेस की हेल्प की वजह से. और ये किसका था? डेंटे का ही योगदान था इसमें. डेंटे की मदद से ही उन्होंने ये सारा कुछ इतनी दूर से देख लिया था. 1000 माइल्स दूर भी आजकल हम देख सकते हैं. तो अगेन हमारी एबिलिटीज़ यहाँ पे भी इंक्रीज़ हुई हैं. सो ओवरऑल आइडिया क्या था कि रोबोट्स ने हमारी एबिलिटीज़ इंक्रीज़ की हैं. और उसको देन उसमें एग्जांपल ये दो, एक मेडिकल फील्ड में और एक हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से भी देख सकते हैं. सो ओवरऑल हमारी एबिलिटीज़ के एक्सटेंड करने के बारे में बात की है उन्होंने सारे पैसे में. सो हेडिंग्स, व्हाट शुड बी ब्रेन फंक्शन नो,
स्टिक पॉसिबिलिटीज, जजमेंट्स के बारे में नहीं, पावर नहीं है, ह्यूमन स्किल्स। सो यस, ह्यूमन स्किल्स। सो व्हाट दे मेंशन अबाउट ह्यूमंस, ह्यूमन ऑपरेटर। सो व्हाट दे मेंशन अबाउट स्किल्स, एबिलिटीज हैव बीन हाइटन। हाइटन मीन्स कुछ ऊंचाई कर देना, ऊंचा कर देना या बढ़ा देना। सो हाइटन, फॉर हाइटन व्हाट दे मेंशन, एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक की हेल्प से। यस, सो ये स्टार्टिंग में आइडिया दिया था, तो ये उन्होंने बताया था कि ह्यूमन ऑपरेटर की एबिलिटीज़ बढ़ी हैं। किसने बढ़ाई हैं, रोबोट ने। सो विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, रोबोटिक्स के लिए तो उन्होंने रोबोट सिस्टम ये बताया था कि मेडिकल फील्ड में, और उसके बाद जो नासा ने डेंटे बनाया था दैट वाज आल्सो अ रोबोट। सो रोबोट सिस्टम ने बोथ द केसेस में जो ह्यूमंस की एबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज की हैं। सो दैट इज़ ऑल मेंशन्ड, ह्यूमन स्किल्स, ह्यूमंस एबिलिटीज़ हाइटन, एक्सटेंड विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स और रोबोट्स की वजह से। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड देयर। सो आंसर इज क्लियरली 6th। और कोई नहीं आएगा यहाँ पे, कुछ भी ब्रेन हमारी प्रेफरेंस के ब्रेन को कंट्रोल करने के बारे में कुछ बात नहीं हुई है। ये 8th पहले ही हो चुका है, प्रेडिक्शन की कोई बात नहीं हुई। और अनदर अप्रोच जो सेम रिजल्ट मीट करे, सो सेम रिजल्ट की बात, ऐसा किसी रिजल्ट की पहले बात नहीं हुई। सो आंसर इज ओनली 6th। सो लेट्स गो टू yes no not given next. So next question is, lives were saved by NASA robot Dante. So NASA, yes, it was mentioned NASA. So robot, here it is mentioned robot, and Dante, here it is mentioned NASA robotic Dante. So many lives were saved by NASA robot Dante. So there is nothing mentioned about whether he has saved lives or not. So डेफिनेटली नासा के बारे में बात हुई, डेंटे के बारे में बात, उसने कितनी जिंदगियां बचाई या नहीं बचाई इसके बारे में कोई भी बात नहीं हुई। So what should be the answer here? Not given. It would not be no. Some get confused that it should be no because उन्होंने बताया नहीं है कि सेव की थी, बट उन्होंने ये भी नहीं बताया कि लाइव्स नहीं सेव की थी उसने। So इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन होती है यस नो नॉट गिवन में, तो सीधा क्या करो, उसको नो या नॉट गिवन बना के देख लो। यस कब होगा, जब उन्होंने बताया कि लाइव्स सेव की थी डंटे ने, तो यहाँ पे नहीं मेंशन है तो यस तो नहीं है। नो कब होगा, जब उन्होंने बताया कि लाइव्स नहीं सेव की थी। अगर उन्होंने पैसेज में लिखा कि लाइफ नहीं सेव की थी, यहाँ पे लिखा है लाइफ सेव की थी, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि लाइफ डेंटे ने नहीं सेव की, तो यहाँ पे नो नहीं बनता है, और नॉट गिवन क्लियरली बनता है, क्योंकि नासा रोबोट और डेंटे बट गिवन है, बट लाइफ सेविंग के बारे में कोई बात ही नहीं हुई। सो लाइफ सेविंग इज नॉट गिवन। सो हाफ पार्ट ट्रू, हाफ पार्ट नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन। सो नेक्स्ट, रोबोट्स आर एबल टू मेक फाइन विजुअल जजमेंट्स। सो रोबोट्स क्या फाइन और विजुअल जजमेंट्स बना सकते हैं। सो अगर हम यहाँ से देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि रोबोट सिस्टम है दैट कैन परफॉर्म सम काइंड ऑफ ब्रेन एंड बोन सर्जरी विद सम मिलीमीटर एक्यूरेसीज। सो रोबोट्स हैं कुछ ब्रेन और बोन सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर वो ब्रेन और बोन सर्जरी कर सकते हैं और वो भी सब मिलीमीटर एक्यूरेसी के साथ, सब मिलीमीटर एक्यूरेसी होगी काफ़ी ज़्यादा फाइन, और ब्रेन और बोन सर्जरी करें तो वहाँ पर उनको कुछ विजुअली कुछ जज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो यहाँ से देख के क्लियरली यही लगता है कि राइटर के व्यूज़ के साथ ही एग्री करता है कि रोबोट्स कुछ फाइन एंड विजुअल जजमेंट्स बना सकते हैं। सो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन के सब मिलीमीटर एक्यूरेसी वाले जजमेंट्स वो बना सकते हैं। सो फ्रॉम हियर यू कैन मेंशन दैट द आंसर फॉर 22nd should be yes. So first 20th was yes, then not given, and again 22nd is yes. So let's move next. Next was the internal working of the brain can be replicated by the robot. So internal working, brain की internal working के बारे में भी यहाँ पे कुछ बात नहीं हुई। So next read करते हैं, try to find the answer. Next let's move to paragraph C. What they say here. But if robots are to reach the next stage of labor saving utility, तो हमारी labor saving utility में अगर robots को next stage पे जाना और एडवांस होना है तो they will have to operate with less human supervision. तो उनको human की less supervision से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी human ही उनको supervise करते हैं, सारे orders human ही देते हैं, and be able to make at least a few decision for themselves. और कुछ decision है जो उनको खुद बनाने पड़ेंगे उनके लिए, जो कि गोल्स है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। वाइल वी नो, जब हमें पता है कि हम रोबोट को एक स्पेसिफिक एरर को हैंडल करना तो बता सकते हैं, बट एक एक्सपर्ट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि हम अभी भी रोबोट को इतनी कॉमन सेंस और रिलायबिलिटी नहीं दे पाए कि वो डायनेमिक हमारे वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर पाए।
सो इंडीड द क्वेस्ट फॉर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो क्वेस्ट है, इसने मिक्स्ड रिजल्ट्स दिए हमें। सो क्या बोलते हैं नेक्स्ट, डिस्पाइट स्पैज्म ऑफ इनिशियल ऑप्टिमिज्म, इनिशियली जो उन्होंने ऑप्टिमिज्म, जो इनिशियली कुछ पॉजिटिव सोचा था, उनको क्या होप थी कि 1960 और 1970 में जब हमारे पास ट्रांजिस्टर सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर थे, हमें लगा कि दे माइट बी एबल टू फॉर्म इन द सेम वे एज द ह्यूमन ब्रेन बाय 21st सेंचुरी। सो हमने क्या सोचा कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर हैं, जो ट्रांजिस्टर सर्किट हैं, ये उसी तरीके से काम कर सकते हैं जिस तरीके से हमारा ह्यूमन ब्रेन करता है। और कब ये कर लेंगे, अबाउट 21st सेंचुरी के बारे में। सो इनिशियली उन्होंने एक कुछ सोचा, कुछ प्रिडिक्ट किया। क्या प्रिडिक्ट किया, 21st सेंचुरी में ह्यूमन ब्रेन की तरह ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और ट्रांजिस्टर सर्किट काम करेंगे, माइक्रो प्रोसेसर्स। रिसर्चर्स लेटली हैव एक्सटेंडेड देयर फोरकास्ट बाय डेकेड्स इफ नॉट सेंचुरीज। बट क्या हुआ कि रिसर्चर्स ने बाद में अपना जो फोरकास्ट था, फोरकास्ट मतलब जो प्रेडिक्शन थी, प्रेडिक्शन कौन सी थी इनिशियली, पहले वाली प्रेडिक्शन कौन सी थी कि 21st सेंचुरी में वो परफॉर्म करेंगे, ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेंगे ट्रांजिस्टर सर्किट, बट वो नहीं कर पाए। तो रिसर्चर ने क्या किया, अपनी प्रेडिक्शन को और एक्सटेंड कर दिया बाय डेकेड। डेकेड मतलब 10 ईयर पीरियड, इफ नॉट सेंचुरीज, अगर सदियाँ नहीं तो उन्होंने डेकेड्स कुछ के आगे डाल दिया इसको। इस ओवरऑल पैसेज में क्या था, स्टार्टिंग में उन्होंने क्या बताया था, रोबोट के कुछ एडवांस होने के बारे में बात की थी कि रोबोट्स को अगर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तो उनको अपने डिसीजन आप लेने पाएंगे, एडवांसमेंट के बारे में सारी बात थी। फिर उसके बारे में क्या हुआ, एक प्रेडिक्शन हुई। प्रेडिक्शन क्या हुई कि वो कब हो जाएंगे 21st सेंचुरी में ह्यूमन ब्रेन की तरह कुछ ट्रांजिस्टर सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर काम करेंगे। तो उसी जो एडवांसमेंट की वो बात कर रहे थे कुछ, उसके बारे में एक प्रेडिक्शन हुई। देन क्या हुआ, वो हुए बिल्कुल नहीं हुए। तो क्या हुआ, रिसर्चर्स ने बाद में अपना जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी उसको एक्सटेंड कर दिया। तो ह्यूमन ब्रेन की तरह तो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए, बट प्रेडिक्शन को जरूर आगे डाल दिया गया। सो ओवरऑल पैसेज को अगर आप बिल्कुल शॉर्ट समराइज करोगे तो पहले एडवांसमेंट की बात हुई, एडवांसमेंट, देन प्रेडिक्शन, देन एक्सटेंडेड। सो एडवांसमेंट, प्रेडिक्शन, चेंज, 3 वर्ड्स में आपको लिखना हो पैराग्राफ को तो बेस्ट आप ये लिख सकते हो। सो ये हो गया इसका ओवरऑल आइडिया। नाउ लेट्स मूव टू हेडिंग। सो ब्रेन के फंक्शन के पास हम सक्सेस मिली है, कुछ सक्सेस मिली है ऑब्जर्विंग फ्रॉम ब्रेन फंक्शन। तो ब्रेन के फंक्शन को यहाँ पे कुछ भी ऑब्जर्व नहीं किया, ब्रेन के फंक्शन की कोई यहाँ पे बात नहीं हुई। और अगेन ह्यूमनिस्टिक पॉसिबिलिटीज, साइंटिस्ट कुछ एग्जामिन कर रहे हैं ह्यूमनिस्टिक पॉसिबिलिटीज, नहीं बात हुई। और देयर आर जजमेंट्स, रोबोट्स जो नहीं बना सकते, यहाँ पे जजमेंट्स की बात, कोई जजमेंट्स नहीं बताए उन्होंने। कुछ बताया कि वो डायनेमिक वर्ल्ड से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हम इतना रोबोट को नहीं सिखा पाए, बट यहाँ पे कोई जजमेंट्स की बात नहीं हुई कि कौन सी जजमेंट नहीं है। स्टिल अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कभी कभी 1 या 2 में, तो आप ऐसे कर उनको दोनों लिख के देख सकते हो। तो दोनों को लिख के बाद में अगर नेक्स्ट पैराग्राफ में किसी में क्लियर होता है तो आप उसमें से एक को अगर क्लियर हो गई तो दूसरी उसकी दूसरे पैराग्राफ की बच जाएगी। तो यहाँ पे जजमेंट्स जो रोबोट नहीं बना सकते, यहाँ पे कुछ नहीं, जजमेंट्स के बारे में बात नहीं हुआ है, जो हम उन्हें कुछ कॉमन सेंस नहीं दे पाए वो उसकी बात हो रही है। सो हैज द पावर ऑफ रोबोट, रोबोट की पावर की बात नहीं हुई। ह्यूमन स्किल्स हैव बीन हाइटेंड विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक्स, तो रोबोटिक की वजह से ह्यूमन की स्किल ये पहली हो चुका है। 7th हमारी प्रेफरेंस ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए नहीं बात हुई। ओरिजिनल प्रेडिक्शंस हैव बीन रिवाइज्ड। सब ओरिजिनल प्रेडिक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, इनिशियल ऑप्टिमिज्म। इनिशियली उन्होंने सोचा ओरिजिनल प्रेडिक्शन कौन सी थी, 21st सेंचुरी में वो ह्यूमन ब्रेन की तरह ये सर्किट्स काम करेंगे। हैव बीन रिवाइज मतलब चेंज कर दिया, उसको एक्सटेंड कर दिया, बदल दिया। सो वो क्या, एक्सटेंडेड। सो यहाँ पे उन्होंने क्या बताया, एक्सटेंडेड देयर फोरकास्ट, रिसर्चर ने एक्सटेंड किया अपना फोरकास्ट। सो एक्सटेंडेड के लिए क्या दिया हुआ है, रिवाइज्ड, और प्रेडिक्शन क्या दिया है, फोरकास्ट। सो 9th इज करेक्ट आंसर। So after finding heading, we have found that here answer for heading is 9. Let's move to yes no questions, yes no not given. So what they have mentioned here, so yes it is the internal working of the brain can be replicated by the robots. So, internal working जो brain की है क्या सेम टू सेम रोबोट कर रहे हैं या कर सकते हैं। तो here internal working of the brain, उन्होंने क्या कहा था, might be perform in the same way as human brain. So perform हो गया वर्क करना same way as human brain की तरह। तो ये उन्होंने पहले सोचा था बट वो हुआ नहीं हुआ। तो रिसर्चर्स हैव लेटली एक्सटेंडेड देयर फोरकास्ट। सो रिसर्चर ने अपना फोरकास्ट क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है। तो उन्होंने स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे कि हमें लग रहा था, जब इनिशियल स्पेस में क्या था, ट्रांजिस्टर सर्किट या माइक्रो प्रोसेसर ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेंगे। सो वो भी नहीं हुआ।
सो नहीं हुआ। सो यहाँ पे बोला है कि इंटरनल वर्किंग ऑफ द ब्रेन कैन बी रेप्लिकेटेड। रेप्लिकेटेड क्या होता है? सेम वे में कॉपी करना। सो रेप्लिकेटेड के लिए ये सेम वे बताया हुआ, तो वो कर सकते हैं? नहीं, वो सेम ह्यूमन की तरह काम नहीं कर सकते। तो राइटर ने क्या बताया था कि उन्होंने फोरकास्ट एक्सटेंड कर दिया, वो सेम ह्यूमन की तरह काम नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो काम कर सकते हैं, कैन बी रेप्लिकेटेड। सो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्टरी। सो व्हाट शुड बी द आंसर्स? नो। गॉट इट? ओके, सो इट्स डन। नेक्स्ट इज जापानीज हैव द मोस्ट एडवांस रोबोट सिस्टम। तो जापानीज के पास मोस्ट एडवांस रोबोट सिस्टम है। लेट्स सी कि उनके पास मोस्ट एडवांस रोबोट है कि नहीं। अभी तो जापानीज की कोई बात नहीं हुई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पैराग्राफ। सो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं? व्हाट दे फाउंड। क्या बोल रहे हैं कि व्हाट दे फाउंड, उनको मिला क्या? किनको? वही जो हमारे जो रिसर्चर थे, जो हमारे साइंटिस्ट थे जो पहले काम कर रहे थे 1960 या 70, उन्होंने ऊपर बताया था कि हमें 1960 और 70 में वो ट्राई कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, कि ह्यूमन ब्रेन की तरह कुछ काम किया जाए, ट्रांजिस्टर सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर। तो इन 40-50 ईयर्स में कुछ तो उनको मिला होगा। तो वो जो अटैम्प्ट कर रहे थे मॉडल का, तो इसमें उन्होंने क्या देखा कि जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन के जो 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, ये बहुत ज़्यादा मच मोर टैलेंटेड हैं। और ह्यूमन जो परसेप्शन है, जो हमारी थिंकिंग है, जो हमारी परसेप्शन है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। जितना हम प्रीवियसली सोचते थे, इमेजिन करते थे, उससे भी ज़्यादा। सो हमारा माइंड काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सो उन्होंने क्या किया, रिसर्चर ने वो रोबोट बना लिया दैट कैन रिकग्नाइज, जो पहचान सकते हैं। क्या पहचान सकते हैं? मिसलाइनमेंट। किसी मशीन पैनल की मिसलाइनमेंट को वो पहचान सकते हैं बाय फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर। बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम भी वो कर सकते हैं। 1 मिलीमीटर का फ्रैक्शन, मतलब उसका 10th या 100th पार्ट भी वो रिकग्नाइज कर सकते हैं कंट्रोल फैक्टर एनवायरनमेंट में। सो अगर आप क्वेश्चन के बारे में 20 सेकंड के बारे में श्योर नहीं थे, तो यहाँ से भी ये श्योर हो जाता है। रोबोट्स आर एबल टू मेक फाइन विजुअल जजमेंट्स। ऑफ फाइन विजुअल के लिए उन्होंने क्या बताया है? विजुअल हो गया, कुछ मिसलाइनमेंट जज कर रहे हैं। फाइन के लिए बताया फ्रैक्शन ऑफ ए मिलीमीटर। सो बहुत ज़्यादा बारीकी वाला काम। और रोबोट्स आर एबल टू मेक, इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है? रोबोट्स दैट कैन रिकग्नाइज। सो रोबोट्स रिकग्नाइज कर सकते हैं, ये हो गया रोबोट्स आर एबल टू मेक। फाइन के लिए फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर, विजुअल के लिए हो गया मिसलाइनमेंट। सो मिसलाइनमेंट को सामने वो देख के ही पहचानेंगे। सो यहाँ से भी कंफर्म हो जाता है कि 22 का आंसर यस आएगा। सो ये तो बता दिया कि रोबोट्स क्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं? बट द ह्यूमन माइंड, जो ह्यूमन माइंड है, कैन ग्लिम्स। ग्लिम्स क्या होता है? जरा से किसी चीज़ को, जैसे पलक झपकना होता है, किसी झलक लेना, जरा सा देखना। सो ह्यूमन माइंड किसी चीज़ को जरा सा देख के भी, किस चीज़ को? रैपिडली चेंजिंग सीन। सो एक सीन जो बहुत ज़्यादा फास्ट चेंज हो रहा है, उसको जरा सा देख के भी इमीडिएटली डिसरिगार्ड द 98% डाटा दैट इज़ इररेलेवेंट। सो ह्यूमन माइंड क्या कर सकता है? कोई भी सीन जो बार बार चेंज हो रहा है, उसमें उसको जरा सा देख के भी उसमें से जो 98% इररेलेवेंट डाटा, उसको हम डिसरिगार्ड कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारे लिए अवेलेबल इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो 98% है, उसको हम छोड़ सकते हैं, उसको डिसरिगार्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड आया, उसने आपको बोला कि ये सेलफोन है, इसमें 100 फ़ोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, उसमें से 98 आपकी हैं और या 98 किसी और की हैं, 2 आपकी हैं। तो आप क्या करते हैं? हम गैलरी ओपन करते हैं, उसमें साथ के साथ ही उसको स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और उसको बहुत जल्दी हम पहचान लेते हैं कि इसमें से कौन सी 2 हमारी हैं और बाकी किसी और की हैं। सो ये चेंजिंग सीन काफ़ी ज़्यादा फास्ट जो चेंजिंग सीन हो रहा है, उसमें से भी जजमेंट्स कौन मेक कर सकता है? ह्यूमन माइंड। ठीक है, फर्स्ट। तो ह्यूमन माइंड किसी भी चेंजिंग सीन में जजमेंट बना सकता है। तो वहाँ पे कुछ भी जो हमारे काम का या कोई भी इररेलेवेंट डाटा होगा, उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सो उसके बाद इंस्टेंटेनियसली वॉकिंग ऑन अ वुड चेकर द साइड ऑफ ए वाइंडिंग फॉरेस्ट रोड। तो इंस्टेंटेनियसली, बिना किसी देरी के, इमीडिएटली हम फोकसिंग ऑन वुड चेक बेसिकली कोई भी जैसे फॉरेस्ट का जो वुड होती है, उसके बारे में कुछ बात कर रहे हैं। तो फोकसिंग ऑन द वुड चेक एट द साइड ऑफ एक वाइंडिंग फॉरेस्ट है, उसके रोड के साथ में जो वुड चेक पड़ा हुआ है, उस पर फोकस कर सकते हैं। और द सिंगल सस्पिशियस फेस इन ए टुमल्टस क्राउड, तो एक बहुत ज़्यादा जो बिग क्राउड है, उसमें कोई सिंगल सस्पिशियस फेस है, उसको भी हम पहचान सकते हैं। सो बेसिकली ये जो एबिलिटीज़ हैं, जो काम, जो जजमेंट्स ह्यूमन माइंड बना सकता है, वो उसके बारे में लिखा हुआ है।
तो हम क्या एक चेंजिंग सीन में जजमेंट बना सकते हैं, एक वाइंडिंग फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट में एक साइड में एक वुडचक है उस पर हम फोकस कर सकते हैं, या किसी एक बिग क्राउड में एक सिंगल जो सस्पिशियस फेस है उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं, उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हज़ारों लोगों में अगर एक किसी को पहचानना हो, जो हमारा कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, तो हम उसको भी पहचान लेते हैं। देन द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर सिस्टम ऑन अर्थ कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एबिलिटी। सो ये जो एबिलिटीज़ थी जो ह्यूमन माइंड की थी, ये जो बताई हुई हैं, ये मोस्ट एडवांस कंप्यूटर सिस्टम वो क्या हो गया, कोई रोबोट वगैरह या कोई कंप्यूटर है अर्थ पे, मोस्ट एडवांस कंप्यूटर या रोबोट भी ये काम नहीं कर सकता, कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एबिलिटी। एंड न्यूरो साइंटिस्ट, जो हमारे न्यूरो मतलब ब्रेन के साथ काम करने वाले जो साइंटिस्ट हैं, स्टिल डोंट नो, वो भी अभी नहीं जानते, क्या नहीं जानते, क्वाइट हाउ वी डू इट, हमारा दिमाग ये काम कैसे करता है, हम ये काम कैसे कर लेते हैं। सो फ्रॉम हियर अगेन, अगर आप 23 क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बहुत भी डाउटेड थे, तो इंटरनल वर्किंग ऑफ द ब्रेन कैन बी रेप्लिकेटेड बाय द रोबोट्स। सो इंटरनल वर्किंग के लिए यहाँ पे उन्होंने क्या बता दिया, क्वाइट हाउ वी डू इट, हमारा दिमाग ये काम कैसे करता है। सो इसकी जो वर्किंग है वो मोस्ट एडवांस कंप्यूटर भी ये काम नहीं कर सकता। सो यहाँ पे क्या लिखा है, कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एबिलिटी। सो यहाँ लिखा था कैन बी रेप्लिकेटेड। सो कहीं ना कहीं यहाँ से भी क्लियर हो जाता है कि जो रोबोट्स हैं हमारी तरह काम नहीं कर सकते इंटरनल वर्किंग के लिए, बट हाउ वी डू इट, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि हमारा दिमाग ये काम इंटरनली कैसे करता है, तो रोबोट को हम कैसे सिखा सकते हैं। सो यहाँ से भी थोड़ा सा क्लियर हो जाता है। और उसके बाद ओवरऑल सारे पैसेज में क्या दिया था, फर्स्ट उन्होंने बताया एक जजमेंट जो रोबोट बना सकते हैं कंट्रोल फैक्टर एनवायरनमेंट में, वो थोड़ा सा फाइन और विजुअल जजमेंट अच्छा बना सकते हैं, वो देख के कुछ पहचान सकते हैं। उसके बाद ये जो जजमेंट्स हैं, जो रैपिडली चेंजिंग सीन में जजमेंट बनाना, वोल्टस क्राउड में जजमेंट बनाना, या एक वाइंडिंग फॉरेस्ट के साइड में वुडचक में जजमेंट बनाना, तो ये काम ह्यूमन माइंड कर सकता है बट रोबोट नहीं कर सकते। सो एक जजमेंट जो रोबोट बना सकता है, और उसके बाद कुछ जजमेंट्स जो रोबोट नहीं बना सकता, इसके बारे में सारा पैसेज ओरिएंटेड। सो लेट्स गो टू हेडिंग फर्स्ट। सो व्हाट दे हैव मेंशन्ड, कुछ ब्रेन के फंक्शन के बारे में नहीं, ब्रेन का यहाँ पे देखो क्या बताया हुआ था, ब्रेन किस चीज़ का बना हुआ है। सो ब्रेन 100 बिलियन न्यूरॉन से बना हुआ था, तो यहाँ पे ब्रेन वर्ड है बट वहाँ पे ब्रेन के फंक्शन की कुछ बात नहीं की हुई, उससे कुछ सक्सेस मिलना है इसकी बात नहीं हुई। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दैट, होमनिस्टिक पॉसिबिलिटी नहीं, देयर आर जजमेंट्स दैट रोबोट कैन नॉट मेक, सो यू कैन क्लियरली फाइंड आउट। तो यहाँ पे क्या दिया था, फर्स्ट एक जजमेंट दी थी जो रोबोट बना सकते थे, बाद में कुछ जजमेंट्स दी हुई जो रोबोट नहीं बना सकते। तो जजमेंट्स के बारे में जो रोबोट नहीं बना सकते कौन कौन सी हैं, ये एक रैपिडली चेंजिंग सीन वाली, एक वोल्टस क्राउड वाली। सो हैज़ द पावर ऑफ रोबोट बिकम टू ग्रेट की कोई बात नहीं हुई, 6th हो चुका है, 7th। ब्रेन हमारा देखो, ब्रेन की अगेन ब्रेन वर्ड यहाँ पे भी था, बट ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम थिंग्स वी प्रेफर द ब्रेन टू कंट्रोल, कुछ चीज़ें जो हम प्रेफर करते हैं ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए, उसकी बात नहीं हुई। सो रोबोट्स अगेन 8th हो चुका है, 9th हो चुका है, 10th मीट द सेम रिजल्ट नहीं है। सो व्हाट इज आवर आंसर, देयर आर सम जजमेंट्स दैट रोबोट कैन नॉट मेक। सो क्लियरली उन्होंने यहाँ पे बताया है कुछ जजमेंट्स हैं कैन नॉट मेक के लिए, क्या लिखा है देखो, कांट अफोर्ड दैट काइंड ऑफ एबिलिटी। सो जजमेंट्स कौन सी हैं ये ऊपर बताई थी। सो द मोस्ट एडवांस कंप्यूटर कौन हो गया, रोबोट्स, रोबोट कैन नॉट मेक दीज जजमेंट्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट जैपनीज है द मोस्ट एडवांस रोबोट सिस्टम, तो जैपनीज की यहाँ पे कोई बात नहीं हुई और हेडिंग हमने इसकी बना ली। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ दैट इज ही। सो नॉनदलेस, फिर भी जो इन्फॉर्मेशन थ्योरिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट है, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं, वो ट्राइंग टू पूल देयर टैलेंट्स, पूल देयर मतलब इकट्ठे होकर काम करना एक दूसरे की हेल्प के साथ। सो क्या कर रहे हैं, दे आर फाइंडिंग वेज, वो कुछ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं टू गेट सम लाइफ लाइक इंटेलिजेंस फ्रॉम रोबोट्स। तो रोबोट से कुछ लाइफ लाइक मतलब हम जैसी इंटेलिजेंस लेने के लिए कुछ वेज फाइंड आउट कर रहे हैं। वन मेथड, एक मेथड है जो एनालिसिस, जो उन्होंने छोड़ दिया था, लीनियर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। जो कन्वेंशनल जो हमारे पहले चलने वाला जो लीनियर लॉजिकल स्ट्रक्चर थे वो मेथड उन्होंने छोड़ दिया है, उसकी जगह पे क्या यूज़ करने लगे, इन फेवर ऑफ द मेसी एंड एडहॉक अरेंजमेंट ऑफ रियल ब्रेन्स न्यूरॉन। सो मेसी जो काफ़ी थोड़ी कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड जो अरेंजमेंट है रियल ब्रेन की, उसके फेवर में उन्होंने वो पुराने वाला मेथड छोड़ दिया है। सो दीज न्यूरल नेटवर्क जो ह्यूमन ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क हैं, सो इनको क्या नहीं करना, इनको प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, ये खुद को टीच कर सकते हैं देमसेल्व्स, दे कैन टीच देमसेल्व्स बाय सिस्टम ऑफ फीडबैक सिग्नल्स। एक फीडबैक सिग्नल जो ये यूज़ करते हैं
और अपने इलेक्ट्रिक पाथवेज को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कुछ भी काम किया उसके बारे में फीडबैक खुद को देते रहते हैं। जो कुछ गलत हो गया तो उसको फीडबैक दे देते हैं कि ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होगा, और उसके बाद जो कुछ भी इसमें इम्प्रूवमेंट आती है उस चीज़ को अपडेट करते रहते हैं। तो इस तरीके से फीडबैक काम करते हैं। और वाइप आउट कनेक्शन दैट प्रोड्यूस एरर, जो एरर होती है उसको ये रिमूव कर सकते हैं। सो ये थे कि कैसे ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग है। इंटरनल वर्किंग कैसे करते थे ये तो हमें पता नहीं था, बट ये कौन कौन से फंक्शन कैसे कैसे न्यूरल नेटवर्क कैसे काम करते हैं ये हम बता सकते हैं। सो इवेंचुअली ये जो फीडबैक करते हैं न्यूरल नेटवर्क यूज़ करते हैं उसका फायदा क्या है और क्या हुआ। इवेंचुअली द नेट वायर्स इटसेल्फ इनटू अ सिस्टम दैट कैन प्रोनाउंस सर्टेन वर्ड्स। इसकी वजह से कुछ वर्ड प्रोनाउंस करने लगे हमारे रोबोट्स आजकल। जैसे आप देख सकते हो आईफोन में सीरी का फंक्शन उसको देख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो शी कैन प्रोनाउंस सम वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आजकल कुछ मॉडर्न कार्स में आप गूगल मैप्स वगैरह देख लोगे, वहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक रोबोट टाइप्स के कुछ फंक्शन वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जहाँ पे वो आपको मैप की पूरी डायरेक्शन बता सकते हैं। गो स्ट्रेट एंड मूव 100 meters, go left and move 10 meters, this kind of thing. So there are so many, apart from that there are so many other robots that can pronounce some words and they can also distinguish some shapes. So कुछ वर्ड बोल सकते हैं या कुछ शेप वो पहचान सकते हैं। इसकी वजह से ये जो हमने अभी ह्यूमन के ब्रेन की वर्किंग देखी कुछ न्यूरल नेटवर्क से कुछ सीखा है, फीडबैक सिग्नल का काम सीखा है। सो ओवरऑल बेस्ट में क्या था, ये जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, जो न्यूरो एक्सपर्ट थे, सभी एक दूसरे की हेल्प से काम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। इन्होंने पहले ब्रेन की अरेंजमेंट देखी, फंक्शनिंग देखी कैसी है, न्यूरल नेटवर्क की तरह काम करना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी हमें कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो हम कुछ हमारे जो रोबोट्स है कुछ वर्ड बोलने लग गए और कुछ शेप पहचानने लगे। सो व्हाट शुड बी द हेडिंग। सो जब हेडिंग पे आएंगे तो सम सक्सेस एज रिजल्टेड, कुछ सक्सेस मिली है ऑब्जर्विंग हाउ द ब्रेन फंक्शन। सो ब्रेन के फंक्शन को ऑब्जर्व करते। सो ब्रेन के फंक्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे बताया हुआ उन्होंने कि उन्होंने लीनियर लॉजिकल स्ट्रक्चर को छोड़ दिया था कि इसके लिए मेसी एंड एडॉक अरेंजमेंट ऑफ रियल ब्रेन्स न्यूरॉन्स। उसके बाद उन्होंने न्यूरल नेटवर्क स्टार्ट की। न्यूरल नेटवर्क को प्रोग्राम नहीं करना पड़ता, ये खुद को टीच कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। तो इस चीज़ से इन्होंने सीखा। सो उन्होंने ब्रेन फंक्शन को ऑब्जर्व किया और सक्सेस क्या मिली उनको, और कुछ लाइफ इंटेलिजेंस जो ह्यूमन की तरह लेने के लिए ट्राई कर रहे थे। तो उसका क्या था, कुछ नेट वायर्स इटसेल्फ इनटू अ सिस्टम जो कुछ वर्ड प्रोनाउंस कर सकते हैं और कुछ शेप्स पहचान सकते हैं। गॉट इट। सो उन्होंने प्रीवियस सिस्टम की जगह पे अभी ये न्यू ह्यूमन के ब्रेन जैसी फंक्शनिंग इंट्रोड्यूस की, तो उसकी वजह से कुछ वर्ड और कुछ शेप हम पहचान सकते हैं। सो ये सम सक्सेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो दे मेंशन सर्टेन वर्ड्स एंड सर्टेन शेप्स। सो सर्टेन मीन्स सम, कुछ, वो शेप्स के सामने भी सम लिखा और वर्ड्स के सामने भी। सो सम सक्सेस आप यहाँ से भी ले सकते हो फ्रॉम ऑब्जर्विंग हाउ द ब्रेन फंक्शन। सो ब्रेन कैसे काम करता है, तो इससे उन्होंने कुछ सक्सेस ली है। इसी वजह से उन्होंने पुराने वाला लीनियर लॉजिकल स्ट्रक्चर जो सिस्टम था वो छोड़ के भी ये ब्रेन की तरह जो कुछ फीडबैक सिस्टम उन्होंने यूज़ करने स्टार्ट कर दिए। सो आंसर इज 1। As you can see there was nothing mentioned about Japanese or Japan. So here nothing given about question number 24. So we need to read about paragraph F. So let's move to F. So here comes paragraph F. And what they say, इन अदर एरियाज़, कुछ और एरियाज़ में जो रिसर्चर हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं किस चीज़ में, एक नेचुरल रिलेशनशिप बनाना पीपल एंड रोबोट्स में आपस में। और वो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं कि समडे मशीन्स हैं वो टेक ऑन कर लेंगे सम टास्क दैट आर नाउ डन बाय ह्यूमंस, से नर्सिंग होम्स। सो जैसे नर्सिंग होम्स में जो लोग आजकल ह्यूमंस कर रहे हैं वो फ्यूचर में हो सकता है रोबोट्स करने लग जाएँ। तो इसलिए रिसर्चर्स हैं एक नेचुरल रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए ट्राई कर रहे हैं ह्यूमन में रोबोट्स में। सो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे, जापान में, जहाँ पे एल्डरली सिटीजन्स की जो पॉपुलेशन है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रही है, बढ़ रही है। और सो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, टोक्यो जापान की कैपिटल है। वहाँ पे जो साइंस यूनिवर्सिटी है उन्होंने क्रिएट किया एक फेस रोबोट जो लाइफ साइज़ का है, सॉफ्ट प्लास्टिक मॉडल है। लाइफ साइज़ मतलब मन के जितना साइज़ है ऑलमोस्ट उतना है। सो सॉफ्ट प्लास्टिक मॉडल है, फीमेल का हेड लगाया, हेड में क्या है, वीडियो कैमरा एम्बेडेड इन द लेफ्ट आई एज ए प्रोटोटाइप। सो प्रोटोटाइप की तरह उन्होंने हमारे हेड है, हेड के लेफ्ट आई में क्या लगाया हुआ है, एक वीडियो कैमरा।
So when you read the filling the blanks here, what they mention, the prototype of the Japanese face robot, जो prototype था कहाँ mention किया, yes ये prototype है Japanese face robot. So उन्होंने बताया था कि they have created a face robot, yes here it is. Observes the human through, ये human को observe करता है through a dash which is planted in the head, एक ऐसे कुछ something जो head में planted है. तो क्या planted था head में, क्या लिखा था हमने, फीमेल हेड विद ए वीडियो कैमरा. साइड में क्या प्लांटेड है, वीडियो कैमरा, वीडियो कैमरा से ऑब्जर्व करता है. सो व्हाट वुड बी द आंसर फॉर 25th, वीडियो कैमरा. सो नेक्स्ट कम्स, तो पहले रीड कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इट देन रेफर्स टू अ डैश ऑफ टिपिकल लुक्स दैट ह्यूमन फेस कैन हैव, डिसाइड व्हाट इमोशन पर्सन इज फीलिंग. तो ये रेफर करता है किस चीज़ से, जिसमें ह्यूमन की टिपिकल लुक्स, जो ह्यूमन फेस की जो टिपिकल लुक्स हैं वो पहले ही हैं, किस चीज़ को डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इमोशन पर्सन इज फीलिंग. सो पर्सन क्या फील कर रहा है उसके इमोशन को गैस करने के लिए किस चीज़ से रेफर करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना. लेट्स रीड नेक्स्ट. नेक्स्ट क्या बोलते हैं. सो द रिसर्चर्स गोल क्या है कि कैसा रोबोट क्रिएट करना है जिसके सब पीपल कंफर्टेबल फील करें. सो वो कंसिडर किस चीज़ पे कर रहे हैं, फेस पे. बिकॉज क्योंकि रिसर्चर बिलीव करते हैं कि हमारा जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वे है कोई भी इमोशनल मैसेज ट्रांसफ़र करने के लिए. सो हम क्या करते हैं, वी रीड दोज मैसेजेस, हम किसी के जो मैसेजेस हैं वो किसी के फेस एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करके भी रीड कर लेते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कोई पर्सन हैप्पी है, फ्राइटेंड है, एंग्री है या नर्वस है. सो दस जैपनीज जो रोबोट है वो भी डिज़ाइंड है कि वो किसी के इमोशन डिटेक्ट कर सकता है किसी को पर्सन की तरफ देख के, बाय सेंसिंग चेंजेस, उसकी चेंजेस देख के, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ पर्सनस आइज, जो हमारे आइज, नोज, आईब्रोज वगैरह, माउथ कैसे मूव कर रहे हैं उनकी अरेंजमेंट्स वगैरह को नोट करके ये मूवमेंट नोट कर लेता है. इट कंपेयर्स दोज कॉन्फ़िगरेशन, जो इसने मूवमेंट नोट की, जो कॉन्फ़िगरेशन, जो चेंजेस ऑब्जर्व किए, इसको कंपेयर करते दोज कॉन्फ़िगरेशन विद ए डेटाबेस, एक डेटाबेस के साथ ऑफ स्टैंडर्ड फेशियल एक्सप्रेशन एंड गेसेस द इमोशन. इमोशन गेस करने के बारे में कुछ बात हुई थी, यस क्वेश्चन में यहाँ हुई थी इमोशन गेस करने की. तो इट देन रेफर्स टू ए, इट देन रेफर, इट के लिए क्या मेंशन किया है, इट रेफर के लिए कंपेयर्स टू ए, एंड जो दोज कॉन्फ़िगरेशन जो पहले मेजर की थी उनको विद ए डेटाबेस. सो यहाँ क्या है, टू ए, आंसर वुड बी डेटाबेस. सो डेटाबेस के बाद यहाँ पे लिखा है ऑफ टिपिकल लुक्स दैट ह्यूमन फेस कैन हैव, उसके लिए पैराग्राफ में क्या लिखा है, स्टैंडर्ड फेशियल एक्सप्रेशन. स्टैंडर्ड फेशियल एक्सप्रेशन क्या हुआ है, टिपिकल लुक्स ह्यूमन फेस की. और उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, टू डिसाइड व्हाट इमोशन पर्सन इज फीलिंग, उसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, गेस द इमोशन. सो डिसाइड मीन्स गेस करना, इमोशन के लिए इमोशन. एंड देन लास्ट लाइन, सो नेक्स्ट क्या है, टू रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सप्रेशन. सो उसके लिए पैराग्राफ में क्या लिखा है, द रोबोट, जो रोबोट है, देन यूजेज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइनी प्रेशर पैड. सो छोटी छोटी प्रेशर पैड जिसका रोबोट का फेस बना हुआ है उसको यूज़ करता है टू एडजस्ट इट्स प्लास्टिक फेस. तो अपने प्लास्टिक फेस को एडजस्ट करता है इन टू एन अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स, एंड एक अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स देता है. सो लेट्स फाइंड आउट देयर टू रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सप्रेशन. सो टू रिस्पॉन्ड टू दिस एक्सप्रेशन, उसके लिए क्या लिखा है, अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स. एंड देन द रोबोट, आप टू रिस्पॉन्ड दिस एक्सप्रेशन को यहाँ पे क्वेश्चन में ए पार्ट लिख लो, और यहाँ पे ए पार्ट कहाँ पे लिखा है पैराग्राफ में, अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स. एंड आफ्टर दैट द रोबोट यहाँ पे ये रहा लाइन के स्टार्टिंग में, द रोबोट. एंड अल्टर्स मीन्स किस चीज़ को चेंज करना, उसके लिए क्या यूज़ किया, टू एडजस्ट. सो द रोबोट क्या करता है, अल्टर करता है, एडजस्ट करता है. देन इट्स ऑन एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट्स प्लास्टिक फेस. सो प्लास्टिक फेस यहाँ पे आ गया. देन यूजिंग ए नंबर ऑफ, यूजिंग के लिए क्या लिखा है, यूजिंग के लिए यूजेस. ए नंबर ऑफ के लिए क्या लिखा है, एन एग्जाम्पल ऑफ. सो ये भी आ गया, एन एग्जाम्पल ऑफ. आगे आएगा टाइनी प्रेशर पैड. सो व्हाट शुड बी आंसर हियर, टाइनी प्रेशर पैड. सो वी वुड चेक वर्ड लिमिट, नो मोर देन 3 words. So we can use 3 words. If there are 3 words, so tiny pressure pad is answer. If there were word limit 2, so you can use pressure pads, or if a single, then only pads could be answered. So here we can find that there was given everything, the robot, alter, adjust. They have given all the things, just they have used some synonym, like for a number of they have mentioned an example of, and for alter they have used adjust. So they are using some rephrasing plus synonyms. If you understand that, you can easily get answer. And next was
Yes or not given. The Japanese have the most advanced robot system. So Japanese, yes, they have talked about Japanese. Science University of Tokyo, and they have mentioned about Japan and robot, face robot. They have created a face robot, but they have the most advanced. Most advanced is not given. So they are talking about a robot that is Japanese. Japanese is there, robot system is there, but whether it is most advanced or not, they have not compared it with any other part or any other country. So we are not known whether it is most advanced or not. So what should be the answer? It should be not given, because we don't know whether it is most advanced or not. Let's come on heading for paragraph F. So what they say here, they have mentioned that in other areas some researchers are struggling. So researchers are struggling to make some natural relationship between human and robots, and what they were expecting that some tasks that nowadays are being done by humans, they will be done by, they can be or they may be done by robots in the future. So in place of human there can be some robots. So other than that, they have mentioned some working of the face robot that is made by Tokyo University. Okay, so overall what they have mentioned some uses where robots can be used in place of humans, and then they have mentioned working of face robot, that was, and how did it work. So first heading we have already done with that. Second is given for G paragraph. Scientists are examining the humanistic possibilities. So yes, scientists for what is given for scientists, they have, scientists are examining, they have mentioned researchers are struggling, and then for scientists they have mentioned experiments at Science University of Tokyo. So in Science University there will be scientists, and for examining they have mentioned experiments and humanistic possibilities in place of human. So yes, they have mentioned that someday machines will take on some tasks now done by humans. So humanistic possibilities, where humans are being used, there robots can be used. So scientists are examining the humanistic possibilities. Other than that, when they explained working, then they told that like we read those messages और interpreting expression, जैसे हम expressions वगैरह read करते हैं वो सारा कुछ interpret करते हैं, वैसे ही जो Japanese robot है वो भी designed है कि वो भी emotions हमारे फेस की तरफ लुक करके हमको देख के हमारे आईज या आईब्रोज में वो चेंजेस ऑब्जर्व कर सकता है. So these are clearly mentioned humanistic possibilities. So in place of humans like nursing home, robots can be used. So scientists are examining humanistic possibilities. Third is correct answer for F. So now students, we are done with all the questions here with all 6 headings, and then 5 yes no not given, and 3 they were fill in the blanks. So we are done with all those. We've done the heading first, then these yes or not given questions, and then filling the blanks. So now what is the basic conclusion of that? Reading is not at all difficult, it was very easy. Just we need to know some basic strategies, we need to know some basic ground rules. So always if you want to perform good in reading, you should have some good grasp of switching between synonyms. You should have good grasp of using rephrasing or understanding the paraphrasing. You need to understand some complex sentences, and based on that you need to do it logically. Do not always just make a sense of paragraph and giving some guesswork or doing questions like that. Always try to find exact locations and then compare the synonyms. Got it? So reading is not a difficult module, you just need to concentrate in that, just practice. And here we are left with the last passage, that was about saving the language. So that you are going to practice, because you have learned so many things, but if you are not going to practice, you are going to waste your time, because whatever you have learned today it will not be in your mind. If you will make a gap in that, if you will not be practicing that, you will forget everything. So what you can do, you have understood these two passages, firstly go to the first passage, just try to revise that. When you attempted, how you attempted, what were the differences, why you wasted a lot of time, or why you were not accurate, and just find the questions location as I have told you all.
Now just revise why the answer was B, why not A, C and D, why the answer was D, why not A, B and C. So revise all those questions with locations and exact logic. And once you are finished with first paragraph, come to second. Then see how we have made headings, how we approach fill in the blanks, how to make yes, no and not given. What is the difference between no and not given? What answer will be no and what will be not given. So clearly understand all. After understanding both the passages, you can attempt the third one. Now this was the reading. Basically we have discussed as a demo, or it works with both the beginners as well as if you are doing from some time but still you are not getting improvements, you can just watch this video. And if you find any kind of problem or you are not able to understand, firstly try to rewatch the videos and you will definitely understand. And after that, keep practicing, and in future we will again come with some other videos specifically concentrating on true false part, multiple choice parts, filling the blanks, and some other strategies, and how we can manage time, and what others some logics are there behind true false, what situations can be given you in the exam, and how to tackle those we will be discussing in future. So stay connected, keep working, keep improving. Thank you.